Okay, let us begin your chapter. Laplace transform. Laplace transforms. इसको Laplace transform 1 भी बोलते हैं. Okay, so before starting your chapter, let us introduce the chapter first. What do you mean by the Laplace transform, and what is the application for this module, and what is our aim to study this module? So here Laplace transform can be used to solve the ordinary differential equation, and it can also be used to solve partial differential equation like heat equation and wave equation, and it is basically a transformation. Okay, so it can be used in the frequency modulation, and this can be used to solve the LR circuit in electronics, and it can also be used in electrostatic and Fourier transformation में. So many applications are there, you will study later. Okay, so first we define Laplace transformation. So definition. If f of t is a function of t, if f of t is a function of t, is a function of t satisfying certain condition, certain condition, certain conditions. Okay, if f is any function, that function satisfies certain conditions, then the definite integral, definite integral of the form like this, definite integral f of s, and this equal to what? Integral limit 0 to infinity e raised to minus est f of t dt. Okay, and when this integral is exists, then it is called as Laplace transform of the function f of t. So when it exists, is called the Laplace transform, transform of function f of t. Okay, it is denoted by L of f of t. L is what? Operator, Laplace operator. L of f of t means Laplace transform of function f of t. Thus given by इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? Laplace transform of function f of t, and this equal to what? Integral or limit 0 to infinity e raised to minus est f of t and dt. So this is the formula for Laplace transform. So Laplace transform exists when this integral is convergent, means it has some values, finite values, then this is called Laplace transform of the function f of t. Okay, and hence we can write, here इसको equation number 1 दे दो और इसको equation number 2. From 1 and 2 we can observe that Laplace transform of function f of t equal to f of s. So Laplace transform of function f of t equal to what? F of s. Okay, so there is one correspondence between the function f of s and L of f of t. So this is the definition for Laplace transform. So let us do some problem based on this. So here
In some books you can find that instead of f of s, some books has phi of s. ओके, और s के प्लेस पे कहीं पे आपको p मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन s में चल रहा है सब जगह, तो कहीं पे आपको किसी बुक में आपको p में मिलेगा और f ऑफ s की जगह पे फाई ऑफ s मिलेगा। तो प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज अबाउट द नोटेशन। ठीक है, ये सभी अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से नोटेशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको सिखाया जा रहा है जिस नोटेशन से, वही नोटेशन से आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ बुक में आपको मिलेंगे तो वहाँ से आपको समझ लेना है। तो लेट अस डू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एफ ऑफ टी मैं आपको दे रहा हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी when when 0 is less than t is less than 3, and this equal to 6 when t is greater than 3। ठीक है, this function is given to you, this function is given to you। So how to solve this problem? By using definition, write down question number 2, example number 2, find the Laplace transform find the Laplace transform of the function, find the Laplace transform of the function, find the Laplace transform of the function f of t, where f of t is given to you. Write down f of t equal to sine 2t. Condition is 0 is less than t is less than pi, and this equal to what? 0 when t is greater than pi। ठीक है, चलिए इसको देखो कैसा करेंगे हम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Solution for this, again we will use Laplace transform, definition of Laplace transform। So by definition of Laplace transform, what is the definition of Laplace transform? Laplace transform of function f of t equal to integration of limit 0 to infinity e raised to minus st and f of t एंड डी टी, ये आपका डिफिनेशन है। इसको मैं ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, क्योंकि लिमिट हमारा 0 से पाई है और पाई से इन्फिनिटी है। तो पहला 0 से पाई में ब्रेक करेंगे, तो ई रेस टू माइनस एस टी ऐसे लिखेंगे, और एफ ऑफ टी साइन टू टी और डी टी। ठीक है, एंड प्लस सेकेंड वाला लिमिट पाई से कहाँ तक जा रहा है पता नहीं मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ई रेस टू माइनस एस टी एज इट इज़, और एफ ऑफ टी हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 डालेंगे एंड डी टी। ठीक है, तो दिस इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई ई रेस टू माइनस एस टी एंड साइन 2t एंड डी टी एंड प्लस, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई ई रेस टू माइनस एस टी और साइन 2t डी टी। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था लेकिन आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में एक फार्मूला है, रिजल्ट है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो रिजल्ट आपको क्या बोला है, रिजल्ट आपका है इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है, ए एक्स है आपका, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स है, इस तरह का इंटीग्रेशन है। तो उसके लिए फार्मूला होता है 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ई रेस टू ए एक्स इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ए, माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, so this is formula for you. Now we will use this formula to evaluate this integral. 1 upon a square plus b square into e raised to ax a sin bx, a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल में क्या है, a आपका क्या है माइनस एस है और b आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो ए वाला रिजल्ट यूज करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे कॉस होता तो, कॉस होता तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता आपका, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आपका अलग मिलता कॉस के लिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे कॉस अगर आपका होता तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स एंड कॉस बी एक्स डी एक्स, इसके लिए फार्मूला आपका है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ई रेस टू ए एक्स ऐसे रहेगा, ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़। यहाँ आपका चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। तो ये फार्मूला को आप याद रखना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलो मैं ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, और क्या था आपका साइन 2t एंड डी टी, यही था 2t dt। ठीक है, चलो फार्मूला यूज़ करो। फार्मूला में क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए आपका क्या है माइनस एस है, माइनस एस का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा एस स्क्वायर मिलेगा, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि ई रेस टू माइनस यस टी आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में माइनस ए मतलब ए आपका कितना है, ए आपका कितना माइनस एस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा माइनस एस। ठीक है, और साइन, साइन बी एक्स मतलब 2t, साइन बी एक्स मतलब 2t माइनस, माइनस में क्या आता है बी आता है, बी मतलब क्या है 2 कितना, और कॉस बी एक्स दैट इज कॉस 2t। ठीक है, यही फार्मूला है आपका। और अभी लिमिट कितना 0 से पाई अप्लाई कर दो। लिमिट कितना था यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी नहीं था, 0 टू पाई है, तो यहाँ पे लिमिट आप क्या अप्लाई करेंगे 0 से पाई। लिमिट व्हाट इज द लिमिट 0 टू पाई, जस्ट अप्लाई दिस 0 से पाई। ठीक है, चलिए अप्लाई करो। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड चलो अप्लाई करो पाई, जहाँ पे टी है वहाँ पे पाई रखेंगे, अपर लिमिट ई रेस टू माइनस पाई एस, माइनस एस एज इट इज साइन 2 पाई, टी की जगह पे पाई माइनस 2, यहाँ पे कॉस 2 पाई, ये तो पहला वाला ब्रैकेट हो गया माइनस ई रेस टू, यहाँ पे टी की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस एस साइन 0। ठीक है, यहाँ पे -2 कॉस 0, न बंद कर दो ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड दिस इज ई रेस टू माइनस पाई एस, यहाँ से साइन पाई कितना होता है 0 होता है, एंड कॉस 2 पाई कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ई रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, साइन 0 0 कॉस 0 1,
यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो आप। तो 1/s² एंड 2 स्क्वायर को 4 में कर देता हूँ, एंड e⁻πs। ठीक है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, एंड माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, +2। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, 2 में बाहर निकाल ले रहा हूँ, 2/s² + 4। और क्या बचा अंदर, अंदर बचेगा -e⁻πs एंड +1। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिखूँगा, 2/s² + 4, और यहाँ से 1 e⁻πs। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यही आपका आंसर है, e⁻2/s² + 4 इन ब्रैकेट 1 e⁻πs। गेटिंग? तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चलिए, इसके बेस पे मैं आपको एक आध प्रॉब्लम होमवर्क दे देता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर हाउ मच, 3। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए लिखिए, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t where f of t is given to you। यहाँ पे फंक्शन आपको दे रहा हूँ f of t एंड दिस इक्वल टू 3, कभी जब 0 इज लेस देन t और लेस देन 5 रहेगा, एंड f of t इक्वल टू मैं 0 दे देता हूँ, कभी when t इज ग्रेटर देन 5 रहेगा। और सेकेंड क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको करने के लिए, f of t इक्वल टू t², कभी होगा ये when 0 is less than t is less than 1, and another one f of t equal to 1 when t is greater than 1। ये दो क्वेश्चन है SW के लिए, आपको आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लेप्लास से तो डिफिनेशन के बेस पे हुआ, अभी लेप्लास ऑन स्टैंडर्ड फंक्शन के बेस पे होगा अभी। ठीक है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, द टॉपिक इज व्हाट, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ some standard function, standard functions। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन एंड देयर लेप्लास ट्रांसफॉर्म, देयर लेप्लास और यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगा। ठीक है, फंक्शन सपोज मैंने ले लिया e⁻ e⁻t ले लिया, इसका लेप्लास क्या होता है, लेप्लास e⁻at इज व्हाट, दिस इज व्हाट 1/s - a। यहाँ पे s क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, एन एग्जाम्पल फॉर दिस, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻2t। यहाँ पे a कितना है, a इज 2, दिस इज व्हाट 1/s - 2। ठीक है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, e⁻a t। So Laplace transform of e⁻a t is what, 1/s
एस प्लस ए। यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। गेटिंग? सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस ए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ ई रेस टू माइनस टू टी, इसका लेप्लास कितना होगा, वन अपॉन एस प्लस टू। ठीक है। नंबर थ्री, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन ए टी क्या ना होता है, साइन ए टी इज वोट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं साइन टू टी। यहाँ पे ए कितना है, टू है, तो इसके लिए टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली कॉस के लिए होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन कॉस ए टी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन cos a t is what, this is this is what s upon s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, s आपका ग्रेटर देन जीरो है, s इज ग्रेटर देन जीरो। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t is what, this is what simply s upon s square plus 2 square। Similarly next, Laplace transform hyperbolic function, hyperbolic sine at, this is hyperbolic sine, Laplace transform of sine hyperbolic function at is equal to what, is equal to a upon s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए साइन में क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हाइपरबोलिक में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, बाकी नथिंग इज चेंज। साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, ए मतलब यहाँ आपको कितना दिया है, ए यहाँ पे मैंने टू ले लिया, तो टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने ये सब। एंड सिक्स, सिमिलरली हाइपरबोलिक कोसाइन, कोसाइन ए टी। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन, कोसाइन ए टी इज वोट, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या है, एस इज ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे देखिए कॉस का कितना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक कोसाइन का एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक कोसाइन, कोसाइन एच टू टी, तो दैट इज व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, हाइपरबोलिक कोसाइन और हाइपरबोलिक साइन। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे नेगेटिव है ना, यहाँ पे आपको नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आपका क्या कंडीशन होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो कभी नहीं होगा जब एस आपका ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए रहेगा तभी। यहाँ पर भी आपका एस आपका ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए रहेगा तभी ये जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, आपको याद रखना है, ये सब फार्मूले हैं। और एक फार्मूला आपका आ रहा और है, छः के बाद सात, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन अलजेब्रिक फंक्शन, टी रेस टू एन इक्वल टू व्हाट, टी रेस टू एन इज गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। सी यार, ये तो ऐसा स्क्वायर रूट नहीं है, समझ में आया, एन प्लस वन, ए नहीं है, ये ऐसा है, सिंपली ऐसा गामा इसको बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज द गामा ऑफ एन, एंड दिस आल्सो इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस वन, क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। एन क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, एन इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर है। सो दिस इज व्हाट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सपोज मैं टी ले लिया, टी स्क्वायर, तो इसका लेप्लास क्या होगा, एन यहाँ पे क्या है, एन एच टू, तो टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस,
एस रेस टू 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात ये है, नोट यहाँ पे अगर n इक्वल टू 0 ले लिया तो फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, t रेस टू 0 मिलेगा। और t रेस टू 0 कितना होता है, t रेस टू 0 1 होता है। तो इसका आपको क्या मिलेगा लेप्लास, इसका लेप्लास क्या होगा, यहाँ पे n कितना है 0, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेस टू 0 + 1 दैट इज आपको क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/s मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंस 0 फैक्टोरियल = 1। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है 1/s। समझ में आइए, ये फार्मूला है, समझ में आपको ये, यस और नो, हेलो। यस सर। हाँ ये फार्मूले हैं, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपका कौन सा है, ए वाला है। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं बोलूँगा व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t, तो आप क्या बोलोगे 1/s - a। मैं बोलूँगा व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन at, तो आप बोलोगे s/s² - a²। व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n, तो आप क्या बोलोगे n⁻s/n+1 और गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाय s/n+1। समझ में आया, समझ में आया ये, यस और नो। यस सर। हाँ तो ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो ये पूरा लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको ये फार्मूले आना चाहिए। तो चलिए इस थोड़ा आगे प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉपर्टी लर्न करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। पहले हम कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। व्हाट इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ C1 एंड C2 आर एनी टू स्केलर्स, आर एनी टू स्केलर्स और यू कैन से कांस्टेंट स्केलर्स, then Laplace transform of C1 f1t plus C2 f2t क्या मिलेगा आपको, C1 कांस्टेंट हो तो C1 को बाहर ले लो, C1 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t एंड प्लस कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लो, C2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। So this is what linearity property. Okay, so this property is known as what, linearity property। अगर C1 C2 कोई कांस्टेंट है और दो फंक्शन दिया है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का लेप्लास निकालना है तो इस तरह से उसको निकालेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन लिनियरिटी प्रॉपर्टी, एग्जांपल्स। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ following, find the Laplace transform of following functions, following functions given to you। नंबर 1 आपको फंक्शन दिया है, चलिए फंक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए, 2tq 2tq प्लस cos 4t एंड प्लस e⁻²t। और नंबर 2 मैं लिखता हूँ sin qt। ठीक है, ये लिख रहा हूँ। चलिए इसके हम लेप्लास निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 जो दिया है उसको पहले लेट करेंगे, लेट f(t) इक्वल टू 2tq प्लस cos 4t एंड प्लस e⁻²t। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। और नंबर 3 मैं लिख लेता हूँ, 3 का भी 3 मैं लिख लेता हूँ क्या, cos ω t
ओमेगा टी प्लस बीटा, ये भी लिख लिया मैंने। ठीक है, तो चलो फटाफट निकालते हैं। तो नाउ टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन, अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। चलो अप्लाई कर दो लेप्लास, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू टी क्यू एन प्लस कॉस फोर टी एन प्लस ई रेस टू माइनस टू टी। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे, अभी लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो दिस इक्वल टू व्हाट, लिनियरिटी, टू क्या है, कांस्टेंट है, मैं तो इसको बाहर ले लिया मैंने, टी क्यू एन प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस फोर टी एन प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी। ठीक है, वाई दिस हो, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तभी तो ब्रेक हुआ। ऐसा देखो, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको कैसा लिखा मैंने, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, यहाँ पे टू सी वन है। ठीक है, इस तरह से लिखा, तो टू तो एज इट इज, इसका क्या होता है, एन फैक्टोरियल, टी रेस टू एन है, एन क्या है यहाँ पे, एन इज थ्री है यहाँ पे, एन इज हाउ मच, एन इज थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस रेस टू एन प्लस वन, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एंड प्लस कॉस का कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए आपका कितना है, फोर है, तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस ये तो इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है, एस प्लस टू। हो गया, बस यही आपका लेप्लास है, किसका, ये आपका फंक्शन जो दिया है उसका। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू में कैसे करेंगे, लेट लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन क्यू टी। ठीक है, देखिए हमको लेप्लास किसका मालूम है, साइन का मालूम है, कॉस का मालूम है, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का मालूम है, साइन रेस टू क्यू टी का तो नहीं मालूम है। तो उसके लिए हमको देखो पता है, वी नो दैट, क्या क्या हमको पता है, हमको फार्मूला मालूम है साइन टी का, साइन टी का फार्मूला क्या होता है, ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी डिवाइड बाय टू आई, ये साइन का फार्मूला है। ठीक है, तो साइन की जगह पे मैं ए रखूँगा, साइन की जगह पे क्या रखूँगा मैं, वही रखूँगा जो बताया मैंने आपको। तो चलो रख देते हैं, देखते हैं आगे क्या होएगा। ठीक है, उसके लिए हमको नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो देयर फोर एफ ऑफ टी इक्वल टू, मैं क्या रखूँगा, ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी बाय टू आई का पावर कितना है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे तीन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। तो मैं फिर से लिखता हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी बाय टू आई। ठीक है, इसका पावर कितना है, तीन है, तो मैं थोड़ा पावर को अलग अलग करके लिख लेता हूँ, पावर को क्या करता हूँ, अलग अलग करके लिख लेता हूँ। तो वन अपॉन टू आई का पावर क्यू, और यहाँ से ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी का पावर तीन। तभी हमको बायनोमियल एक्सपेंशन मालूम है, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता है, तो चलो पता करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज वन है, ठीक है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे वी एक्सपांड दिस यूजिंग पास्कल ट्रायंगल, तो यहाँ पे वन लिखेंगे और यहाँ पे वन लिखेंगे। ठीक है,
अभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। फिर से 1 यहाँ लिखो, फिर से 1 यहाँ पे लिखो। अभी ये दोनों को ऐड करो, यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ से ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 3 6। यहाँ से यहाँ पे ऐड करोगे तो 4। फिर से 1 ऐड करो, ठीक है। और फिर से यहाँ पे आइए, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5। और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10। और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5। ऐसे एक एक बढ़ाते जाने का और इसको एक्सपांड करते जाने का जितना हमको चाहिए उतना तक। यहाँ पे देखिए, ये किसका फार्मूला बनेगा, ये आपका, ये एक्स माइनस वाई, ठीक है, का स्क्वायर। इसका फार्मूला कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एन प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट देखो, एक्स का कितना है, 1 है, और एक्स वाई का कितना है, 2 है, और वाई का कितना है, 1 है, ठीक है। अभी आपको अगर मैं एक्सा बोलूँगा तो एक्स माइनस वाई का 3 बोलूँगा तो आप कैसा लिखोगे, तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा क्योंकि 3 का पावर चल रहा है, एक्स क्यू, वाई का 0 है, माइनस साइन अल्टरनेट लगाएंगे 3 एक्स। अभी एक्स का घटाएंगे, वाई का बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई का 1। दोनों का पावर ऐड करने के बाद 3 ही आना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे प्लस 3, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पावर पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, 3 ही आ रहा है, ठीक है। प्लस साइन माइनस प्लस देन अगेन माइनस, माइनस में क्या आएगा, एक्स का 0 आएगा और वाई का कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। एनी रेस्ट 0 1 होता है तो उसको नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सिमिलरली आप ये पावर 3 का बोला, सिमिलरली आप 4 का बोलेगा तो 4 की तरह एक्सपांड करने का, 5 का बोला तो 5 की तरह करने का, ऐसे करते जाने का, ठीक है। दिस इज द पास्कल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा अभी, तो दिस इज इक्वल टू वॉट, मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, हो सकता है जगह कम पड़े। तो 1 अपॉन, यहाँ पे 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 2 का पावर 8 करेगा, यहाँ पे आई का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, आई आता है। ये कहीं क्यों आता है देखो, आई का पावर 3 है तो यहाँ पे आई स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना होता है, -1, और इंटू आई तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस आई बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, ठीक है। तो अभी चलो एक्स को एक्सपांड करो। अभी क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स का पावर 3, एक्स आपका क्या है, ए एक्स है पहला वाला, दूसरा वाला क्या है, वाई है। एक्स के पावर 3 ई रेस टू 3 टी माइनस वाई का 0 करेंगे तो 1 आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -3। अभी एक्स का स्क्वायर मतलब कि एक्स का पावर 2, तो 2 वाई का कितना, वाई का पावर 1, मतलब ई रेस टू माइनस आई टी, ठीक है। और अभी यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस आया, और यहाँ पे कितना आएगा, 3। फिर यहाँ पे देखो एक्स, एक्स कितना है आपका, ई रेस टू आई टी, और वाई का क्या है, स्क्वायर, तो मतलब ई रेस टू माइनस 2 i t, ठीक है। एंड देन माइनस, माइनस एक्स का 0 है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं, ई रेस टू 0 1 होता है। अभी वाई का 3, तो मतलब ई रेस टू -3 i t, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपांशन। अभी इसको देखो मैं क्या करूँगा, अभी थोड़ा सॉल्व करूँगा, तो -1/8i, ठीक है। अभी देखो ये पावर, ये 3 वाला पावर है तो उसको एक जगह ले लो, ई रेस टू 3 i t माइनस ई रेस टू -3 i t, मैंने इसको एक साइड ले लिया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करके लेते हैं। सो 3 है, बेस देखो सेम है तो ऊपर का एड हो जाएगा, तो ई रेस टू आई टी एंड प्लस ई रेस टू यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, -i t, ठीक है। ई रेस टू -i t। अभी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी 3 है तो 3 यहाँ पे ले लो, तो -1/8i ई रेस टू 3 i t माइनस ई रेस टू -3 i t, ठीक है। यहाँ से देखो, ये तो इसको ऐसा लिख लो, और यहाँ से मैं -3 बाहर निकाल रहा हूँ,
क्या बचेगा, ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी। ठीक है। तो अभी देखो फार्मूला बनाने के लिए मुझे इस तरह का फार्मूला बनाना है, तो क्या करूँगा उसके लिए 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 आई टी और ई रेस टू 3 आई टी माइनस ई रेस टू माइनस 3 आई टी डिवाइड बाई क्या करूँगा मैं, 2 करूँगा। इसको आई है ना, तो आई को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं आई हटा दे रहा हूँ। आई को मैं क्या कर रहा हूँ, आई इधर ले रहा हूँ आई, ठीक है। माइनस, ये तो एक हो गया, तो यहाँ पे 3 ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी डिवाइड बाय यहाँ पे 2 आई। ठीक है। तो अभी यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो मतलब -1/4 हो जाएगा इधर। और ए वाला तो किसका फार्मूला बन गया, ए किसका बन गया, sin 3t का बन गया। ये -3, ये किसका बन गया, ये किसका बन गया, ये sin t का बन गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, साइन का फार्मूला e⁻t माइनस e⁻ यहाँ पे आई भी है, ई रेस टू ई रेस टू हाँ ए आई टी माइनस a/2i, एक इसका फार्मूला होता है sin 8t का फार्मूला होता है। ठीक है। तो अभी लेप्लास ले लो, क्योंकि लेप्लास अभी तक लिया नहीं ना, फंक्शन को ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा था। तो अभी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई कर दो लेप्लास, तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी हो गया। हाँ, यहाँ से अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट है, 1/4 बाहर हो जाएगा, एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ sin 3t माइनस 3 sin t। ठीक है। चलो लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, -1/4 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो इसका, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t, माइनस माइनस गया अंदर, प्लस हो गया, सो 3/4 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। ये कैसे आया, बाय लिनियरिटी। ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व कर दो, इसका प्लस लेप्लास निकाल लो। इसका साइन क्या कितना होता है, 3/s² प्लस 3² एंड प्लस 3/4, इसका कितना होता है, 1/s² प्लस 1², दैट इज़ 1। ठीक है। इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, सो 3/4, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, उसको पीछे लिख रहा हूँ, 1/s² प्लस 1 माइनस 3/4 1/s² प्लस 3²। ठीक है। अब यहाँ से 3/4 बाहर भी निकाल सकते हो, कॉमन निकाल लो, आप निकालना चाहते हो तो। चलो मैं निकाल देता हूँ। सो दिस इक्वल टू 3/4 मैंने बाहर ले लिया, आपको क्या मिला, 1/s² प्लस 1 एंड माइनस 1/s² प्लस 3² को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, किसका, साइन क्यू का। ठीक है। सिमिलरली आप sin⁻⁴ रहेगा, sin⁻⁴ हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। sin⁻⁴, sin⁻⁵, sin⁻⁶ बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये पास्कल ट्रायंगल यूज करके आप निकाल सकते हो। गेटिंग। Yes, sir. फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ शेयर, ये क्या है नेक्स्ट वाले में, इसको क्या करना है, इसमें cos A प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या आएगा, cos A इंटू cos B एंड माइनस sin A इंटू sin B, देन अप्लाई करोगे लेप्लास यहाँ पे हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, लेट
एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा। चलो इसको इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ। इसको एक्सपांड करेंगे तो कॉस ओमेगा टी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है फार्मूला, साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, अभी लेप्लास अप्लाई करो। अप्लाइंग लेप्लास, अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। चलो अप्लाई कर दो। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी एंड विच इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी कॉस बीटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन बीटा। ठीक है, अप्लाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी। सी हियर, यहाँ पे इसमें टी नहीं है तो एक कांस्टेंट है, जिसमें टी नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है, तो एक कॉस बीटा बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉस ओमेगा टी माइनस यहाँ पे साइन बीटा बाहर आएगा, क्योंकि इसमें टी नहीं है ना तो कांस्टेंट हो गया साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉस बीटा। इसका लेप्लास कितना होता है, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है ओमेगा है, माइनस साइन बीटा। इसका लेप्लास कितना होता है, ए अपॉन ए आपका क्या है, ए इज ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज योर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, अभी हम आपको होमवर्क देंगे। एग्जाम्पल, फाइन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, नंबर वन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको कॉस का दे रहा हूँ, कॉस क्यू टी। ठीक है, नंबर टू, नंबर टू में आपको दे रहा हूँ साइन रेस टू फोर टी, साइन रेस टू फोर टी। एंड नंबर थ्री एक और आप ले लो, एक और ले लो आप, साइन हाइपरबोलिक क्यू थ्री टी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या ना होता है, देखो मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ, साइन के हाइपरबोलिक क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, तब आपको इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखूँ मैं फार्मूला, लिखूँ फार्मूला मैं, देखो फार्मूला आपको लिख रहा हूँ मैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक का ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस ए टी डिवाइड बाय टू होता है। अब कॉस के लिए क्या फार्मूला होता है, सिमिलरली आपको कॉस के लिए क्या फार्मूला होगा, बोलो। कॉस हाइपरबोलिक ए टी के लिए फार्मूला होता है ई रेस टू ए टी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आता है, ई रेस टू माइनस ए टी बाय टू, ये फार्मूला होता है कॉस के लिए। ठीक है, हाइपरबोलिक कोसाइन और हाइपरबोलिक साइन और कोसाइन में आई नहीं आता है, समझ में आया? ये चीज़ें आप ध्यान रखना है आपको। कॉस केवल कॉस ए टी रहेगा तो उसके लिए फार्मूला आपका होगा ई रेस टू ए आई टी, यहाँ पे माइनस नहीं आता है प्लस आता है, ई रेस टू माइनस ए आई टी डिवाइड बाय टू। ठीक है, इस साइन हाइपरबोलिक हो गया, एक कॉस हाइपरबोलिक हो गया, एक कॉस सिंपली कॉस ए टी का फार्मूला है, हाइपरबोलिक नहीं है, कि साइन साइन का फार्मूला मैं दे चुका हूँ पहले। तो प्लीज़ ये सभी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम है, ये आप घर पे कीजिए। इज दिस एनफ फॉर यू, यस नो, Yes, बोलो। sir. हाँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ डू दिस प्रॉब्लम एट योर होम।
Okay.